بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرس پہ ڈاکٹر منور حسین. آج میرے ساتھ بڑے اہم بڑے پیارے دوست سجاد بخاری. آپ ان کو پاکستان ٹیلی ویژن پہ دوسرے پرائیویٹ چینلز کے اوپر دیکھتے ہوں گے, ان کے تجزیے سنتے ہوں گے. ان کے پروگرامز بڑے مزیدار ہوتے ہیں, بڑے انفارمیٹیو ہوتے ہیں, عام کنونشنل پروگرام سے ذرا ہٹ کر ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے تھوڑا سا وقت دیا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے. ڈاکٹر صاحب پلیجر. اچھا ڈاکٹر صاحب, آ جاتے ہیں اکانومی کے اوپر. پاکستان کی اکانومی پہ اکثر بات ہو رہی ہوتی ہے نا کہ ہماری اکانومی آؤٹ آف دا ٹریک جا رہی ہے, لیکن کچھ اچھی باتیں بھی, اچھی خبریں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں. مثال کے طور پہ رشین آئل بھی ہمارے پاس آ گیا, لیکن ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیل کا جو ایگزٹ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. پھر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل بھی اس طرح سے نہیں ہو پا رہی. تو اس ساری سچویشن کو آپ کس طرح اسیس کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو فرسٹ آف آل بہت شکریہ آپ نے جو میرے لیے کلمات کا استعمال کیا, اور آپ نے جس طرح اپنے انٹرو میں تو ابھی تک ایک طالب علم ہوں, آپ استاد ہیں. استاد جو ہے وہ استاد ہوتا ہے. اب تک کا جو میرا ایک ادنا سا ایک چھوٹا سا تجزیہ آپ کی نظر کرتا ہوں. اس وقت جو صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب, یہ مایوس کن صورتحال نہیں ہے. قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم ایک پہلو پہ بات کرتے ہیں, ایک پہلو کو نظر انداز کرتے ہیں, اور بدقسمتی یہ ہے ہمارے تجزیہ کاروں کی, ہمارے اینالسٹ کی, اور یہ جو ہمارے پولیٹیکل آبزرورز ہیں, یہ ہر گفتگو یہ انالیسز میں کچھ سیاسی وابستگی کا استعمال کرتے ہیں, اسے ساتھ میں شامل کرتے ہیں. تو میں تمام تر اینکیں اتار کے کسی سیاسی وابستگی, کسی نظریاتی وابستگی سے ہٹ کے بات کروں گا. میں پاکستان کی بات کروں گا. پاکستان کے لیے آنے والے دن بہت اچھے دن ہیں. پاکستان نے بدقسمتی سے اپنے نیچرل الائز سے علیحدہ ہو کر اس کا خمیازہ آج تک بھگتا ہے. بلکہ یہ آج کی بات نہیں, 1951 سے ڈاکٹر صاحب, جب نیچرل الائز کو ذرا, نیچرل الائز میں جو ہمارا ایران ہے, روس ہے, افغانستان ہے, سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں, روس, بیلاروس تک پاکستان کے نیچرل الائز ہیں جن کے ساتھ ہمارے مفادات مشترکہ ہیں. ٹھیک. ہماری بدقسمتی کیا, ہم نے ان سب کو جمپ کر کے ایک ایسے بے وفا دوست کا انتخاب کیا جس نے ہمارے ساتھ آدھی ادھوری کہانی کا حصہ رہا. یعنی اس نے سوویت یونین سے لے کر اب تک ہمیں آدھے راستے میں چھوڑا, ہمارے ساتھ بے وفائی کی, ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. امریکہ اپنے مختلف مفادات کے ذیلی اداروں کے ساتھ مل کر جنوبی ایشیا کے ممالک کو زیر تسلط رکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اپنی ڈالر ہیجمنی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے, اپنی سپریمیسی قائم رکھنا چاہتا ہے, اور اس کے لیے جو مین رول ادا کر رہا ہے وہ آپ کا عالمی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف ہے. آئی ایم ایف کیا کرتا ہے, آپ کی اکانومی کو کیپچر کرتا ہے, نہ صرف آپ کی اکانومی کو بلکہ آپ کی اکنامک ساورینٹی جو ہے اس کو کیپچر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ آپ کو ایک بیل آؤٹ کرتا ہے, اور اس بیل آؤٹ سے پہلے جو کنڈیشنیلٹیز ہیں اس میں آپ کا پورا جو اکنامک انفراسٹرکچر ہے اس کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے, بجٹ اپنی مرضی سے بنانے کی بات کرتا ہے. جو آپ کا مرکزی بینک ہوتا ہے, اسٹیٹ بینک ہوتا ہے کسی بھی ریاست کا, وہ اس کو اپنی مرضی سے, اور ایون کہ اس کے سربراہ کو منتخب کرنا یا اس کی اپوائنٹمنٹ تک کا اختیار چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈالر ہیجمنی ہے اور امریکن ہیجمنی ہے اس خطے میں. اب پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے, اور یہ فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کے کیا ہے. آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب اوکس بنا, آپ متعدد اس پہ بات کرتے رہے, کوارڈ بنا, نیو فارمیشنز ہوئی. ٹھیک ہے. پھر ہندوستان کو انہوں نے ایک نیوکلیر سب میرین کے ڈیل تک بات ہوئی, آگے بات بڑھی. بالکل ٹھیک ہے. جرمنز نے. پھر ہوا کیا, اس کی سب سے بڑی یہی ہمارا وہ پوائنٹ تھا جہاں پہ ہمیں ایک فیصلہ کرنا پڑا کہ اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے جو فطری اتحادی ہیں ان کے ساتھ اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا ہے. پھر ہم نے ماسکو کے ساتھ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کیا, بڑی خوش اسلوبی سے ہم آگے بڑھے. پھر اس کے بعد استنبول, جس کے کردار کو ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے, ہمارے لوگ نہیں سمجھ, ہمارے تھنک ٹینکس تو سمجھتے ہیں, ہم نے اپنی دوریوں کو قربتوں میں بدلا. پھر اس کے بعد ہم تہران کے ساتھ, جو ہمارا بہت ہی ایک اہم پارٹنر بن سکتا ہے, جس کے ساتھ ہمارے مذہبی, ثقافتی, ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہے, پھر ہمارے بارڈرز ہیں ساتھ. ٹھیک ہے. وہاں پر جو ریسورسز ہیں اور یہاں پہ جو پوٹینشیل ہے ریسورسز ہیں, اس کو یوٹیلائز کرنے کا فیصلہ کیا گیا. پھر بیجنگ, ڈیفینیٹلی بیجنگ اس وقت آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کے لیے امریکہ کتنا پریشان ہے. وہ پچھلے دنوں ڈیفالٹ میں جا رہا تھا, اور بائیڈن نے ایک اچھا ڈیسیجن بھی لیا, فیصلہ کیا, ورنہ امریکہ ڈیفالٹ کر چکا تھا. اور جو ماسکو کا ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, بڑا ناراض بھی ہوا تھا امریکہ اس پہ, کیونکہ وہ ہانگ کانگ اور جو دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات تھے, وہ ایک اس کی بہت بڑی وجہ بھی تھی. آنے والے دنوں میں پاکستان گو کہ سروائیو کر رہا ہے,
पाकिस्तान मजीद सर्वाइव कर सकता है। अब आप देखिए $1 बिलियन का चाइना जो है वो हमारी स्टेट बैंक जो है वो कह चुका है कि जी हमें $1 बिलियन चाइना से मौसूल हो चुके हैं, जो कि लिक्विडिटी में हेल्प देगा, हेल्प stable कर देगा। लेगा। हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो $10 बिलियन से तजावुज कर चुके हैं। Okay. IMF ये चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है कि IMF ये चाहता है कि ये इजिप्ट और श्रीलंका बने और उसके बाद वो फिर उसको खुद ऑपरेट करे जैसे मर्जी उसको, ताकि चलाना दुनिया चाहे। को बता सकें कि चाइना के साथ जिसने भी डील की है उसका असर यही होता है। बिल्कुल। अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान ने सही इंतखाब किया है, बर वक्त फैसला किया है। और इवन के आपको याद होगा कि चाइनीज फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट दी थी और उसने कहा था कि पाकिस्तान के साथ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बिहेवियर है, जो रवैया है, जिस तरह वो डील कर रहे हैं, हमारी इस पे नजर है, हम पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ पे ये बताइएगा, देखें बिलफर्ज हम ये सपोज करते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उस वक्त हम रशिया के साथ चले जाते, सोवियत यूनियन के साथ जाते हैं, अमेरिका के साथ नहीं जाते। जो आपकी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है वो तो ख़ुद जनरल बाजवा ने भी कहा, उससे पहले दूसरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स ने भी कहा कि ये मरहून मिन्नत है अमेरिका के साथ ताल्लुकात में। तो वो अगर आप रूस के साथ जाते तो इस तरह की आपकी मिलिट्री मॉडर्नाइज्ड होती, जो कि अब मिलिट्री मॉडर्नाइज्ड है। और फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दुनिया के, जिनका आपने जिक्र भी किया, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, FATF है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात के बगैर आपको समझ में आती है कि आप उसमें असर और रसूख को कायम कर पाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी के तो दो बड़े अहम इशूज़ आते हैं ना। एक तो पाकिस्तान की इकॉनमी अनप्रेडिक्टेबल रही है पूरी तारीख में, बिल्कुल। दूसरा हमारे इंपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा हैवी वो रहा है इन्हिसार। तीसरी बात यह है कि आपकी इकॉनमी जो है एड के ऊपर चलती है, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन आपकी हुई नहीं है शुरू से लेकर। ये तो फिर यूँ लगता है कि जैसे हमारे फैसला साज जो कुव्वतें थीं उन्होंने सही वक्त के ऊपर फैसला नहीं डॉक्टर किया। साहब, ये जो आपकी आखिरी बात है मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। बदकिस्मती हमारी रही है, हमने अपने ग्रोही मफादात की अपनी ज़ाती मफादात से अपने इज्तमाही मफादात को ठेस पहुँचाई है और अपने इज्तमाही मफादात को तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल नहीं दिया है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जिससे हम तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली बोलते हैं, वो हमने अडॉप्ट नहीं की। हम शॉर्ट टर्म पे हमेशा रहे हैं। तो अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए 3 पैरामीटर्स हैं जो बहुत अहम है। एक आपका शॉर्ट टर्म है, एक मिड टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। ठीक है। आपने शॉर्ट टर्म का इंतखाब किया, इवन कि मिड टर्म में भी आप नहीं गए। ठीक है। जब आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाने जाते हैं तो फिर आप एक फ्यूचर प्रोड्यूस करने जाते हैं कौम का, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। गो कि ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अमेरिका के साथ बिगाड़ हमने नहीं पैदा करनी। हमारी सबसे ज्यादा इस वक्त ट्रेड अमेरिका के साथ है और हमारे फेवर में है, फेवर में है हमारे। हाँ। लेकिन हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि हम सिर्फ उस एक ट्रेड की खातिर हम अपने करीबी दोस्तों को, अपने फितरी तहादियों को क्यों नाराज कर देते हैं? ये भी हमें नहीं करना चाहिए, जिनसे हमें parallel लेके ज्योग्राफिकल चलना। प्रॉक्सिमिटी है आपकी। बिल्कुल। अब मसला क्या है कि पाकिस्तान जिन ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहा है, वो अब न सिर्फ फाइनेंशियली साउंड है, बल्कि अब वो इतने वेल इक्विप्ड हैं और वो इतने इमर्जिंग पावर्स के तौर पर अब सामने नजर आ रहे हैं, जैसे चाइना। चाइना इस टाइम पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक पावर है। ठीक है। चाइना पूरी दुनिया में इस वक्त तमाम मंडियों में, पूरी दुनिया की तमाम मंडियों में, इवन कि अफ्रीका में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। आपको भी पता है पाकिस्तान और यहाँ तो इतना नहीं, बिलियन ऑफ डॉलर्स जो है स्पेंड कर रहा है चाइना वहां पे भी। और इवन कि अमेरिका जो है, अगर आप उनकी मंडियों में देखें तो सबसे ज्यादा चाइना की मसनूआत है। दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि मॉस्को और बीजिंग, यानी रूस और चाइना, ये 2 P5 के परमानेंट मेंबर्स हैं और 2 अहम रुकन ममालिक हैं। तो इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते किसी सूरत में। अगर तो अमेरिका आपको लेट सपोज ये कह देता है कि जनाब आप ये कंडीशंस लगाएं, आप अमेरिका रूस के साथ अपने ताल्लुकात ना बनाएं, आप बीजिंग के साथ आप रिवर्स कर दें ये सब जो आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है शी जिनपिंग की जानिब से जो लिया गया है, आप उस कनेक्टिविटी का हिस्सा भी ना बने, तो फिर डेफिनेटली हमारे पास तो ऑप्शन नहीं रहता। हमने तो अपने हमसायों के साथ अच्छे सलूक रखने हैं ना, हमने तो अपने हमसायों के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि हमने रहना यहाँ पे है, हमारे ट्रेड से लेकर ये सब कुछ। अब आप पोटेंशियल देखें, बोथ साइड पे कितना पोटेंशियल है। ईरान सैंक्शंस की वजह से हम आज तक कितना उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। अगर आप जीवनी जाए ना गवादर, तो जीवनी में आपको इस वक्त भी पेट्रोल जो है वो 110 रुपए 120 रुपए लीटर मिल रहा है। अगर आप ईरान के अंदर चले जाएं, और आपको पता है ईरान में एक वल्नरेबल तबका है जिसको एक कार्ड इशू किया जाता है, उसको फ्री पेट्रोल भी मिलता है, वो पेट्रोल भी बेच देता है वो मार्केट में आके, वो पाकिस्तान स्मगल्ड होता है पेट्रोल। तो अगर इस ट्रेड को हम प्रॉपर यूटिलाइज करें तो आप यकीन जाने जो इस वक्त फॉसिल फ्यूल और ये जो
फ्यूल हेजमनी है ना पूरी दुनिया में, इसका खात्मा हो सकता है। अच्छा, और जो ये डेवलपमेंट डॉक्टर साहब, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, चाइना ने एक बहुत खूबसूरत हिकमत अमली अपनाई और उसमें 3 ममालिक ने बड़ा एक अहम रोल प्ले किया, कतर, पाकिस्तान और उसको लीड किया चाइना ने। ठीक है। और ये जो आपका सऊदी अरब और ईरान का तनाज़ा है, इसको खत्म करे। अब इससे 2 तनाज़े नहीं खत्म हुए, हौसी बागियों से लेके, यमन से लेके और मशरक़ वुस्ता के हालात पर भी इसके बहुत ज्यादा असरात मुरतब होंगे, और इसका बेनिफिशरी डायरेक्ट इंडायरेक्ट पाकिस्तान है। ये हमने लोगों को समझाना है कि इन डेवलपमेंट्स का बेनिफिशरी पाकिस्तान है। वो क्यों? रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, सेक्टेरियन वायलेंस, बिल्कुल। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये 2 ममालिक के दरमियान तनाज़ा था। और मैं खुल के आपको कहता हूँ, ये बात अब ढकी छुपी नहीं है, ना ही लगी लिपटी बात है। इन्हीं 2 ममालिक की स्टेबिलिटी की वजह से, इनकी अंडरस्टैंडिंग की वजह से अब पाकिस्तान में ये फैक्टर खत्म हो जाएगा। बदकिस्मती से बैटल फील्ड बनाना चाह रहे थे, यहाँ होता रहा बहुत कुछ, अखाड़ा बने हुए थे। अब एक तो वो काम बड़ा अच्छा खुशस्लूबी से, और एक और नुक्ता डॉक्टर साहब, क्योंकि आप इस स्ट्रेटेजिक स्टडीज पढ़ाते हैं, आप समझते हैं इन तमाम मामलात को, वो जो एक ख्वाब चकनाचूर हुआ है ना इस डेवलपमेंट के बाद, वो था सी पैक का मतबादिल कॉरिडोर, जो कि जमहूरी मुल्क बनाना चाह रहे थे। आपको याद होगा G20 के अचानक समिट हुआ, उन्होंने कहा ये क्या हो गया जनाब। फिर यूरोपीय यूनियन खड़ी होगी, उन्होंने कहा जनाब हम तो एक जमहूरी कॉरिडोर बनाना चाहते हैं जो कि सेंट्रल एशिया तक जाए। फिर आपको याद होगा सरगेई लारोव जो उस टाइम रूस के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि हम इस तरह की किसी फौजी अड्डे की इजाजत नहीं देंगे कि आप यहाँ से बैठकर मिसाइल दागें। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे हैं, हमें घबराने की और परेशान होने की कतई तौर। मेरा यही आखिरी सवाल आपसे यही है कि जो ईरान की गैस पाइपलाइन है, जिसके ऊपर कहा जा रहा है $18 बिलियन का जुर्माना आयद हो जाएगा अगर हम उस मंसूबे को मुकम्मल नहीं करते, इसको तनाज़र में रखते हुए पाकिस्तान का मुस्तकबिल, जिससे ज़्यादातर लोग, अब तक तो मायूसी की खबरें मिल रही थी, अब कुछ अच्छी खबरें मिल रही, तो मुस्तकबिल पाकिस्तान का क्या देख रहे हैं? हमारे देखने वालों के लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, हमने कुछ गलतियां की हैं डॉक्टर साहब, जिसका जिक्र हमने कर दिया, और गलतियां भी इतनी गलतियां की कि हम गलतिस्तान बन गए। यानी हम इतनी गलतियां की, पै दर पे हमने गलतियां की। अब सबसे बड़ा जो हमें फायदा होने जा रहा है, देखें पाक ईरान गैस पाइपलाइन के बारे में सबको पता है, ईरान ने अपने हिस्से का तकरीबन सारा काम कर लिया, हिंदुस्तान इससे निकल गया। टापी आ रहा है, बहुत बड़ा, बहुत ही अजीम शान मंसूबा है। कासा 1000 है, वो बहुत बड़ा मंसूबा है। ठीक है, हमें जो सबसे ज्यादा थोड़ा सा बता दें, कासा 1 क्या है और टापी क्या है? थोड़ा देखिए, टापी जो है वो एक पाइपलाइन है जिसे आप ये कह सकते हैं जो माशी इनकलाब ला रही है। ठीक है। आपका कासा 1000 जो है, किर्गिस्तान और जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ये एक कॉरिडोर बना रही हैं। ठीक है। जिससे वहाँ की जितनी मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, चाहे उसमें गैस है, ठीक है, उसमें ऑयल है, एक मॉस्को की एक पाइपलाइन भी है, ठीक है, वो उसको भी हमने, क्योंकि आपको याद होगा कजाकिस्तान के साथ हमारी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही थी, जिसको इजराइल ने बड़े बुरी तरीके से मुतासिर किया था। ठीक है। और उस वक्त ये भी कहा जा रहा था कि अगर ये डेवलपमेंट हो गई तो इजराइल का नामो निशान खत्म हो जाएगा। खैर, हम वो माजी में नहीं जाना चाहते, लेकिन डॉक्टर साहब ये चीज बड़ी अहम है कि ये जो ट्रेड टू ट्रेड है ना, ये जैसे मिसाल गुड्स टू गुड्स का जो अभी ईरान के साथ और रूस के साथ मुआहदा किया है, ये सैंक्शंस को काउंटर किया गया है, इसको हमने समझना है। गुड्स टू गुड्स क्या है? लेट्स सपोज हम कहते हैं हम आपको वीट देते हैं, आपसे पेट्रोल लेते हैं, वाटर सिस्टम है। हाँ। अब इससे ये होगा कि ना सिर्फ माशी एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और डॉलर का प्रेशर भी, डॉलर का प्रेशर कम होगा, और जो ये जो आपका बिजनेस है, अब ट्रेड जो होगा उसमें डॉलर जो है अब आपको गिरता हुआ नजर आएगा। ये इस कौम के लिए बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन पाकिस्तान को बहुत मोहतात रहना होगा स्पॉइलर से, सिंपैथाइजर से, फैसिलिटेटर से, और खास तौर पर ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है ना, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर, जिसको हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी कहते हैं, ये अपने नौजवानों को और अपनी यूथ को समझाना होगा कि कहीं आप इसको तकवीयत तो नहीं बख्श रहे, कहीं सोशल मीडिया पे आप इसका निशाना तो नहीं बन रहे, कहीं आप पाकिस्तान के इज्तिमाई मफाद को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, और कहीं अपनी फॉल्ट लाइंस पर खुद तो आप कोई ऐसा असरअंदाज नहीं हो रहे कि जो हमें एक मुश्किल वक्त में ला खड़ा करे। तो मैं समझता हूं कि हमने अपने नौजवानों को ब्रीफ करना है, अपनी यूथ को ब्रीफ करना है। बहुत शुक्रिया सजाद बुखारी साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कि मौके बहुत अच्छे आ रहे हैं। हमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, यूनिटी की ज़रूरत है, 5th जनरेशन वॉरफेयर को समझने की ज़रूरत है और उससे बचने की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना, आपको अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप लाइक भी कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।